یہ کہانی 5 دوستوں کی ہے جو ایک سفر پر سیر کو نکلتے ہیں۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ ایک گاڑی والا آتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ سارے دوست کتنی مصیبت میں پھنسنے والے تھے ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس کہانی کے 3 پارٹ ہیں میرے دوستوں جو آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ کہانی پسند ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 5 دوستوں سے جنہوں نے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کہیں باہر جانے کا ارادہ کیا۔ ان کے نام طلحہ، صوبان، زبیر، ازلان اور ارباز تھے۔ شام کے وقت یہ 5 دوست ازلان کی گاڑی پر روانہ ہوئے۔ ازلان اور ارباز آگے بلکہ باقی تینوں پیچھے بیٹھے تھے۔ ابھی چند میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک سنسان جگہ پر ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ صوبان بولا، یار ازلان پتہ بھی تھا کہ اتنے بڑے سفر پر روانہ ہونا ہے، کم از کم گاڑی تو ٹھیک کروا لیتا۔ ازلان نے جواب دیا، یار آج صبح ہی تو چیک کروایا تھا، اس کم بخت کو صبح تو فراٹے مار کے چل رہی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا۔ طلحہ نے ازلان کی بات کاٹی، یار اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، رات کا اندھیرا چھا رہا ہے اور مجھے اس سنسان جگہ پر ڈر لگ رہا ہے۔ صوبان بولا، اوہو یہ دیکھو موبائل میں سگنل بھی نہیں آ رہے، اب کیا ہوگا؟ کسی کو کال کر کے بلا بھی نہیں سکتے۔ اتنی دیر میں ازلان گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی کو چیک کرنے لگ گیا۔ گاڑی میں سے دھواں نکل رہا تھا، سوائے طلحہ کے باقی سب گاڑی سے باہر نکل آئے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن گاڑی بھی کہاں چلنے والی تھی۔ وہ کہتے ہیں نہ کہ جب وقت کسی کے خلاف سازش کرتا ہے تو اچھوں کے رونگٹے کھڑے کروا دیتا ہے۔ وقت ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی چال چلنے والا تھا، لیکن یہ دوست وقت کی ایک ظالم چال سے بے خبر تھے۔ 1 گھنٹہ کوشش کرنے کے بعد وہ سب تھک ہار کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ نہ آگے جانے کا کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ پیچھے جانے کا۔ آخر طلحہ نے خاموشی توڑی، ہمیں واپس گھر کی طرف جانا چاہیے، آخر چلتے چلتے پہنچ ہی جائیں گے۔ ازلان نے اس کی بات کاٹی، پتہ ہے کتنے میل کا فاصلہ طے کر چکے ہیں ہم، واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارباز کو ایک ترکیب سوجھی، کیوں نہ آگے کی طرف جائیں، ہو سکتا ہے کہ آگے کہیں میکینک کی دکان مل جائے اور گاڑی کی خرابی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ زبیر نے بات کاٹی، آگے کی طرف جانے کی بجائے کیوں نہ پیچھے کی طرف جائیں، کیونکہ پیچھے تو ایسی کوئی ڈراؤنی اور خوفناک چیز نہیں دیکھی جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ ہاں البتہ آگے کا پتہ نہیں کون سی خونخوار چیزیں ہمارا استقبال کریں گی۔ صوبان بولا، یار بات تو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن پیچھے بھی دور دور تک میں نے کہیں میکینک کی دکان نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میں تو جب سے گھر سے نکلا ہوں باہر کی دنیا ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ سب سوچ بچار کر ہی رہے تھے کہ آگے کیا جائے، اتنے میں ایک گاڑی وہاں سے گزری جو تھوڑی دور آگے جانے کے بعد رک گئی۔ ازلان فوراً بولا، وہ دیکھو آگے ایک گاڑی رکی ہے، شاید ہمیں یہاں تنہا پا کر ہی اس آدمی نے گاڑی روکی ہے، کیوں نہ ہم اس کے پاس جا کر مدد طلب کریں۔ ابھی وہ اس آدمی کے پاس جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ وہ گاڑی پیچھے کی طرف آئی اور ان کی گاڑی کے عین برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ازلان باہر نکل کر گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی کے شیشے سے اندر کی جانب دیکھا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک شخص نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا بچے، گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ میری مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ ازلان کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا، جی محترم، ہم کب سے یہاں پریشان کھڑے تھے، نہ آگے جانے کا کوئی سراغ تھا اور نہ پیچھے جانے کا، اور موبائل میں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا لیتے۔ اگر آپ ہماری کچھ مدد کر دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اس شخص نے فوراً کہا، جی کیوں نہیں، اب سب ایک کام کریں، اپنی گاڑی کو لاک کر کے میرے ساتھ آ جائیں، آگے کچھ ہی دور میرا گھر ہے، اب آج رات وہاں آرام کر لیں اور میں ایک میکینک کو جانتا ہوں، اسے آپ کی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ سن کر ازلان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وہ بولا، جی ٹھیک ہے، میں اپنے دوستوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ بھاگا گاڑی کی طرف آیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ سب راضی ہو گئے، لیکن صوبان نے اختلاف کیا۔ صوبان نے کہا، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ آدمی کون ہے اور ہمیں کہاں لے جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی قاتل ہو اور ہم سب کو مار ڈالے۔ میری بات مانو تو آج رات ہم اپنی گاڑی میں گزارتے ہیں، ایک بار آنکھ لگ گئی تو صبح کب ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر صبح کی روشنی میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ ٹال مٹول کرتے کرتے آخر صوبان بھی اس آدمی کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گیا۔ وہ سب اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی،
आखिर सौबान ने खामोशी तोड़ी। मोहतरम, रात के इस वक्त अब कहाँ जा रहे थे? कहीं हमारी तरह सैर सपाटे पर तो नहीं निकले थे? इस आदमी ने सर्द आह भरी। नहीं जनाब, हम जैसों के मुकद्दर में सैर सपाटे कहाँ। सुबह काम के लिए घर से निकलते हैं और शाम को फिर घर वापसी, बस ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है हमारी। अजलान बोला, बड़े मसरूफ आदमी लगते हैं, अब एक दो दिन हमारे साथ गुजारिए। अगर आपको सैर सपाटे का शौकीन ना बना दिया तो फिर कहिएगा। आदमी बोला, हुजूर, हमसे मिलने के बाद कोई सैर सपाटे के लायक नहीं रहता। गाड़ी में अचानक सन्नाटा छा गया। इस आदमी ने फुरेरी ली। मेरा कहने का मतलब था कि हम जिसे मिलते हैं इसे काम और मसरूफियत से इश्क करवा के छोड़ते हैं। सौबान ने इसकी बात काटी। मोहतरम, हम किसी का असर नहीं लेते बल्कि दूसरों पर अपना असर छोड़ते हैं। इस आदमी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, देखा जाएगा। इतने में इस आदमी ने एक हवेली के आगे गाड़ी रोकी। ये सुनसान जगह पर वाक़ई एक बड़ी हवेली थी जो दिखने में भौतिया लग रही थी। वो आदमी गाड़ी से निकलते ही आगे बढ़ा और हवेली का दरवाजा खोलने लग गया। सौबान ने अपने दोस्तों से कहा, अभी भी वक्त है, मैं कहता हूं भाग चलू यहां से। अगर एक बार अंदर चले गए तो फिर पता नहीं क्या होगा। फिर तो इस आदमी की मर्जी से ही बाहर निकल पाएंगे। तलहा ने हामी भरी। हाँ यार, तुम कहते तो ठीक हो, ये हवेली तो वाकई भौतिया लग रही है। जब तक ये आदमी दरवाजा खोलता है भाग चलते हैं। अजलान ने तंजिया लहजे में कहा, डरपोक लोग, खुद भी डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो। भला एक भूत गाड़ी कैसे चला सकता है? थोड़ी सी अक्ल तो इस्तेमाल कर लेते। इतने में दरवाजा खिल गया और इस आदमी ने सबको अंदर आने को कहा। सौबान बोला, मोहतरम, आपके आलिशान घर के आगे ताला क्यों लगा हुआ था? क्या आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? वो आदमी बोला, जनाब, ये हवेली मेरे बाबा जान की थी और अब मेरी है। मेरा हकीकी घर यहाँ से काफी दूर है। अब सब काफी थके हुए थे और मैं खुद भी बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात इस हवेली पर आराम किया जाए और इसी बहाने आपकी भी थोड़ी सैरोतफरी हो जाएगी। अरबाज बुड़बुड़ाया, हमने तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही ऐसी हवेलियां देखी हैं। जुबैर ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, आज तक फिल्मों में देखी थी तो आज हकीकत में देख लो। जुबैर के पीछे पीछे सब अंदर चले गए। अंदर गए तो देखा कि इसके अंदर का मंजर बाहर के मंजर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ रोशनी थी और हवेली किसी महाराजा के महल की तरह जगमगा रही थी। इस आदमी ने कहा कि आप सब यहाँ बैठ जाएं, मैं अब सब के लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। सौबान ने सरसरी अंदाज में पूछा, लेकिन आप तो यहाँ रहते ही नहीं, तो फिर खाने पीने का सामान कहाँ से लाएंगे? इस आदमी ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया, हुजूर, अपने बीवी बच्चों के लिए खाना लेकर जा रहा था, लेकिन आज शायद इस पर आपका नसीब लिखा हुआ था। बाहर गाड़ी में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। सब वहां के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन सौबान को अंदर ही अंदर खटका सा लगा हुआ था कि जैसे अभी कुछ होने वाला है। इसने अपने दोस्तों से कहा, वो आदमी कुछ भी दे, इसे खाना मत, हो सकता है कि इस खाने में कुछ मिला हुआ हो। अरबाज इसे डांटने लगा, अच्छे खासे इंसान पर खामखा ही शक कर रहे हो तुम। वो बेचारा हमें कैसी सुनसान और बियाबान जगह से उठाकर इतनी शानदार हवेली में लेकर आया और अब हमारे लिए खाने का इंतजाम भी कर रहा है। जुबैर बोला, अब तक तो हम वहां किसी जंगली जानवर का शिकार हो चुके होते। अगर ये आदमी ना आता तो पता नहीं हमारी रात कैसे गुजरती। अजलान भी सौबान को कोसने लगा, अपनी बकवास बंद करो। अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगा कि हम इसे एक गलत आदमी समझ रहे हैं। सौबान बेचारा खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था। इतने में वो आदमी हाथ में खाने के थैले थामे आ गया। इसने सबको खाना पेश किया। इसने खुद खाना खाने से माजरत की। इसने कहा कि मैंने रास्ते में ही खाना खा लिया था, मैं काफी थका हुआ हूं, पहले मैं नहाने जा रहा हूं। आप सब खाने का लुत्फ उठाएं। इन दोस्तों ने खाने के दौरान काफी गुपशप लगाई और सब ने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन सौबान ने कुछ न खाया। वो सबको ऐसे दिखाता रहा कि जैसे वो खाना खा रहा है, लेकिन इसने एक बूंद पानी तक अपने हल्क से ना उतारा। उन्होंने जब तक खाना खाया वो आदमी भी नहाकर नीचे आ गया। इसने सबसे कहा कि उम्मीद है कि अब सब ने पेट भर कर खाना खाया होगा। सब ने इसका तहदिल से शुक्रिया अदा किया कि खाना बहुत लजीज था। ये तो आपके बच्चों का हिस्सा था, लेकिन शायद हमारे नसीब में लिखा था। हमने तो खूब पेट भर कर खाया। इतने में इस आदमी ने कहा कि मैं आपको आराम करने के लिए अपने अपने कमरे दिखाता
हो आप लोग आराम करें, तलहा ने हैरत अंगेज लहजे में कहा। अकेले अकेले कमरे? वाह, हमने तो सिर्फ ख्वाब में ही सोचा था कि हमें सोने के लिए अकेले अकेले कमरे नसीब होंगे, वरना हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के एक कमरे में वालिदैन होते हैं तो दूसरे में सारे बहन भाई। अजलान बोला, आखिर महल इतना बड़ा है तो कमरे तो बहुत ज्यादा ही होंगे। सौबान ने इस आदमी को मुखातिब करते हुए कहा। मोहतरम, हम तो आपका नाम पूछना ही भूल गए। आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस नाचीज को खलील कहते हैं। जुबैर बोला, वाकया दोस्ताना नाम है आपका। इतने में खलील ने उनको उठने का इशारा किया और खुद ऊपर की जानिब चल दिया। इसने उनको अलग अलग कमरे दिखाए और वो सब जाकर अलग अलग कमरों में सो गए। काफी वक्त गुजर गया लेकिन सौबान अभी भी बेचैनी का शिकार था। वो मुसलसल करवटें बदल रहा था। इसे नींद नहीं आ रही थी। इसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर देखूं कि बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं। इतना सोचकर वो फौरन अपने बिस्तर से उठा और अरबाज के कमरे में चला गया। अरबाज के कमरे में जाते हुए इसने कुछ अजीब व गरीब आवाजें सुने, जैसे कोई छुरियों को तेज कर रहा हो और साथ साथ बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाजें भी आ रही थीं। ये सब आवाजें सुनकर उसकी रूह कांप गई। वो जैसे ही अरबाज के कमरे में पहुंचा, इसने फौरन दरवाजे को कुंडी लगाना चाही, लेकिन क्या देखता है कि दरवाजे की तो कुंडी ही नहीं थी। इसने अपने कमरे में सोने से पहले इस बात का मुशाहिदा ही नहीं किया था कि दरवाजे की कुंडी नहीं थी। वो जल्दी जल्दी अरबाज के बिस्तर की तरफ भागा और इसे उठाने लगा, लेकिन आगे क्या देखता है कि अरबाज बेहोश पड़ा था। इसे बार बार उठाने के बावजूद भी अरबाज की तरफ से कोई जवाब न आया। सौबान का जिस्म पसीने से शराबूर था। वो हैरत में था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है और उसने हमें खाने में बेहोशी की दवा क्यों मिलाकर खिलाई। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपने दोस्तों को किसी भी सूरत इस जाल से बचाना चाहता था, लेकिन कैसे? वो तो अपने होश में ही नहीं थे और हवेली से बाहर जाने का भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसका दिमाग सोचों के बोझ से फट रहा था। इसने सोचा कि अजलान के कमरे में जाकर सूरत हाल देखता हूं, लेकिन क्या होगा अगर इस आदमी ने मुझे बाहर देख लिया तो मैं अगर खुद को ही ना बचा सका तो अपने दोस्तों को कैसे बचाऊंगा। खैर, इसने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। खुशकिस्मती से वहां कोई नहीं था। वो भागा भागा इस कमरे की जानिब लपका जहां अजलान आराम पजीर था। कमरे में पहुंचकर उसने अजलान को नीम बेहोश पाया। अजलान की आंखें थोड़ी थोड़ी खिली थीं और वो बात भी कर रहा था। सौबान ने फौरन अजलान को सारी सूरत हाल बताई और इसे उठने को कहा, लेकिन अजलान के जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठकर सौबान का साथ दे। फिर वो दोनों ये बात सोचने लगे कि अगर यहां से भाग भी गए तो कहां जाएंगे। वो तो पूरी हवेली में दंदनाता फिर रहा होगा। इतने में अजलान पर बेहोशी मुकम्मल तौर पर छाने लगे। सौबान इसे उठाकर बाथरूम में ले गया और फौरन उसके हाथ मुंह धुलवाए और उसके सर पर भी पानी डाल दिया, जिससे नशे का असर कम हो गया। अब वो दोनों सर पकड़े सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। इतने में एक चीख ने उन्हें लर्जा कर रख दिया, लेकिन वो किसी लड़की के चीखने की आवाजें थीं। वो दोनों कांपने और रोने लगे। सौबान ने कहा, यार हिम्मत से काम लो, अगर हम ही हिम्मत हार गए तो बाकी सबको कौन बचाएगा। अजलान ने सर्द आह भरी, जिंदा बचेंगे तो उनको बचाएंगे ना। सौबान ने इसे तसल्ली दी, खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। चिल्लू उठो, हिम्मत करो, हमें चलना होगा। अजलान दीवार का सहारा लेकर उठा। इसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। सौबान ने अजलान को सहारा दिया और बाथरूम से बाहर ले गया। इस लड़की के चीखने की आवाज बंद हो चुकी थी। वो दोनों हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़े। सौबान ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थीं, जिनमें औरतें और मर्द शामिल थे। उनकी आवाजें सुनकर अजलान की चीख निकल गई। सौबान ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखा और दरवाजा बंद कर दिया। अजलान को बिस्तर पर लुटाया और खुद बेड के नीचे छप गया। तकरीबन 15 मिनट इंतजार करने के बाद वो बाहर निकल आया और अजलान को उठाकर फिर से बाहर जाने लगा। अचानक फिर लड़की के चीखने की आवाजें आने लगे। वो दोनों कांपने लगे। अजलान ने चीखना चाहा, लेकिन सौबान ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर वो दोनों हिम्मत करके कमरे से बाहर निकल गए। वो दोनों जुबैर के कमरे में पहुंचे और इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन क्या देखते हैं कि वो भी बेसुध पड़ा था, जैसे इसमें जान ही ना हो। सौबान ने जुबैर के मुंह पर पानी के छींटे मारना शुरू कर दिए। देखते ही देखते जुबैर ने आंखें खोल दी, लेकिन वो अभी भी बेसुध पड़ा था और बात भी नहीं कर पा रहा था।
इतने में उन्हें कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया, जैसे कोई कमरे की तरफ आ रहा हो। वो दोनों जुबैर का मुंह साफ करके फौरन बेड के नीचे छप गए। इतने में उन्हें कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया, जैसे कोई कमरे की तरफ आ रहा हो। वो दोनों जुबैर का चेहरा साफ करके फौरन बेड के नीचे छप गए। अचानक कमरे के अंदर दो आदमी दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, आज तो खलील ने बड़े तगड़े शिकार पकड़े हैं। सारे नौजवान हटे गिट्टे हैं, उनके जिस्म का खून भी ताज़ा होगा और आज़ा भी सेहतमंद होंगे। इन लड़कों की वजह से खून पीने वालों को ताज़ा खून मिलेगा, खून बेचने वालों को बेहतरीन खून, गोश्त खाने वालों को सेहतमंद गोश्त और आज़ा बेचने वालों को तंदुरुस्त आज़ा की सूरत में ढेर सारे पैसे। दूसरे ने कहा, हाँ आज तो हमारी मौज ही लग गई है, चलो इस लड़के को उठाकर ले जाएं, शुरुआत इसी से करते हैं। ये बात सुनकर सौबान और अजलान हक्का बक्का रह गए। उनके तो वहम व गुमान में भी ना था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। खैर उन्हें इस बात का पत्ता तो चल गया था कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है, जिनमें से कुछ आदमखोर हैं और कुछ आज़ा फरोश, और ये हमें किसी भी सूरत बख्शने वाले नहीं। सौबान के जहन में एक तरकीब सूझी। इसने अजलान के कान में केसर पैसर की के चलो उन पर दीवा बोल देते हैं, खुदा ने चाहा तो उन दो को तो मारने में कामयाब हो ही जाएंगे। अजलान पहले तो डरा, लेकिन जब इसने देखा कि वो जुबैर को उठा रहे हैं तो इसे जोश आ गया। इनमें से एक आदमी बेड की एक साइड खड़ा था और दूसरा दूसरी साइड। उन दोनों ने बैक वक्त दोनों आदमियों की टांगें खींची और उन्हें सर के बिल गिरा दिया। गिरते वक्त उनके मुंह से चीखें निकले, लेकिन बाहर के लोग गुपशप और शोरगुल में इस कदर मगन थे कि उन्हें अपने दोनों आदमियों की आवाज सुनाई नहीं दी। इन दोनों को चोट तो लगी थी, लेकिन वो अभी भी बेहोश नहीं हुए थे। सौबान और अजलान ने जल्दी से बाहर निकलकर उनके सर पर वार कर दिया और मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। देखते ही देखते वो दोनों बेहोश हो गए। उनको बेहोश करने के बाद सौबान और अजलान ने उनको बांध दिया और उनके कपड़े खुद पहन लिए। अब वो सोच विचार करने लगे कि अगर ज्यादा वक्त उनके आदमी वापस नहीं गए तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए जो भी काम है जल्दी करना होगा, वरना जिंदा बचकर जाना मुमकिन नहीं। इन दोनों ने कमरे के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से उन्हें एक खिड़की नजर आई जो हवेली के बाग में खुलती थी, लेकिन वो दूसरी मंजिल पर खड़े थे और बाग पहली मंजिल पर था। छलांग लगाकर नीचे पहुंचना तो नामुमकिन था और वक्त भी कम था कि कुछ कर सकते। उन्हें नीचे की जानिब जाने के लिए कोई रस्सी भी ना मिली। अब उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। अजलान ने कहा कि किसी के आने का इंतजार करते हैं, जो भी आएगा इसे मार गिराएंगे। इस पर सौबान ने कहा, हम यहाँ खड़े रहकर उनका इंतजार नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि उनकी गैंग कितनी बड़ी और खतरनाक है। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, जुबैर को बेड के नीचे छुपाकर बाहर चलते हैं और अरबाज और तलहा को चलकर देखते हैं। शायद बाहर जाकर कोई रस्सी भी मिल जाए और हम यहाँ से निकल पाएं। वो दोनों भागकर अरबाज के कमरे में पहुंचे। वो बेहोश पड़ा था। वो इसके कमरे की छानबीन करने लगे कि शायद कोई रस्सी मिल जाए कि जिसे इस्तेमाल करके वो बाग तक पहुंच सके। अचानक अजलान के जहन में एक ख्याल आया। वो बोला, क्यों ना बिस्तरों की चादरों को बांध कर बाहर निकला जाए। सौबान ने खुशी के मारे इसे गिले लगा लिया। उन दोनों ने अरबाज को बिस्तर की चादर में लपेटा और इसे उठाकर कमरे से बाहर ले गए। कमरे से बाहर निकले ही थे कि उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उन्हें घूरे जा रहा था। अचानक इसने पूछा, तुम दोनों को इतनी देर क्यों लग गई है इसे ले जाने में? जल्दी ले जाओ, सर्जन साहिब इंतजार कर रहे हैं। सौबान और अजलान के पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन मजे की बात यह थी कि वो आदमी शराब के नशे में धत था, इसलिए उन्हें पहचान ना सका। सौबान ने धीमी आवाज में कहा, जी बस ले जा रहे हैं। वो आदमी नशे में इतना धत था कि सौबान की आवाज न पहचान सका और आगे की जानिब चल दिया। सौबान और अजलान अरबाज को जुबैर के कमरे में ले गए। अब वक्त बहुत कम था, जो भी करना था जल्दी करना था। उन्होंने अरबाज को बेड के नीचे छुपा दिया और फिर बाहर की तरफ लपके वो दोनों भागे भागे तलहा के कमरे में पहुंचे। लेकिन आगे आकर क्या देखते हैं कि तलहा तो कमरे में मौजूद ही नहीं था। उन्होंने इसका पूरा कमरा छान मारा, लेकिन तलहा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मायूसी में डूबे दोनों दोस्त वापस जुबैर के कमरे की तरफ दौड़े कि एक तो ना बचा सके, बाकी दो की जिंदगी अभी भी बचा सकते हैं। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने फौरन दरवाजे के आगे भारी सामान रख दिया ताकि कोई कमरे में दाखिल ना हो सके। उन्होंने फौरन बिस्तरों की चादरों को आपस में बांधा और नीचे बाग तक पहुंचा दिया। अब मसला ये था कि जुबैर और अरबाज अभी तक बेहोश थे,
और जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता उन्हें नीचे ले जाना नामुमकिन था। वो फौरन अरबाज और जुबैर को घसीट कर बाथरूम में ले गए और उन्हें नहला दिया, जिसकी वजह से उनका होश थोड़ा बहाल हुआ। उन्होंने फौरन जुबैर और अरबाज को सूरत-ए-हाल से आगाह किया और सारा मंसूबा बताया। अब वो बाथरूम से निकल आए तो देखा उन दोनों बेहोश आदमियों में से एक आदमी का होश बहाल हो रहा था। अजलान ने फौरन उसके सर पर कोई भारी चीज मारकर इसे दोबारा बेहोश कर दिया। सौबान ने कहा, पहले मैं जाऊंगा क्योंकि मैंने वो बेहोशी वाला खाना बिल्कुल नहीं खाया था, इसलिए मेरा होश बरकरार है। मैं पहले नीचे जाकर देखूंगा, अगर कोई मसला ना हुआ तो फिर तुम लोग नीचे आ जाना। सौबान ने अचानक बात बदली। इसने कहा, जुबैर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नीचे तक पहुंचने में मदद करूंगा क्योंकि तुम पर अभी भी बेहोशी तारी है तो तुम अकेले नीचे नहीं उतर पाओगे। जुबैर ने सौबान की बात से इत्तेफाक किया। अब सौबान आगे था और जुबैर उसके पीछे पीछे। सौबान खुद भी नीचे उतर रहा था और जुबैर को भी उतरने में मदद दे रहा था। देखते ही देखते वो दोनों नीचे उतर गए। बाग में अंधेरा था इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। सौबान ने अजलान और अरबाज को इशारा किया कि नीचे आ जाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों भी नीचे उतर आए। वो सब बहिफाजत नीचे उतरने की खुशी मिना ही रहे थे कि एक चीख ने उनकी खुशी खाक में मिला दी। वो तलहा के चीखने की आवाज थी। सारे दोस्त ज़ारो कतार रोने लगे कि हम अपने एक दोस्त की जान ना बचा सके। सौबान ने सबको तसल्ली दी कि पुरसुकून हो जाओ, खुदा की यही मर्जी थी, तुम सब पर सुकून हो जाओ। हमारे यहाँ से निकलने के लिए हमारा पुरसुकून होना बहुत जरूरी है। इसने इन सब को खामोश करवाया। अब वो सब बाहर का रास्ता ढूंढने में लग गए, लेकिन दूर दूर तक बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पास मायूस होकर बैठने का वक्त भी नहीं था। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें एक छोटा सा दरवाजा मिल गया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आखिर ये दरवाजा किस तरफ जाता है। अब वो सब बाहर का रास्ता ढूंढने में लग गए, लेकिन दूर दूर तक बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पास मायूस होकर बैठने का वक्त भी नहीं था। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें छोटा सा दरवाजा मिल गया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि आखिर ये दरवाजा किस तरफ जाता है। काफी सोच विचार के बाद आखिर सौबान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उन सब के चेहरे खुशी से खिल उठे क्योंकि वो दरवाजा उन्हें मौत से खींचकर जिंदगी की तरफ ले आया था। ये बाहर जाने का रास्ता था। आखिरकार उन्हें बाब हयात मिल गया। बाहर जाते हुए उनके दिल तलहा के लिए गमगीन थे। वो वापस जाकर उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वहां से निकलने के बाद वो पागलों की तरह आगे की तरफ भागने लगे। आखिरकार भागते भागते उन्हें एक बस्ती दिखाई दी। इस बस्ती में हर तरफ अंधेरा था। चूंकि रात का वक्त था इसलिए सब बस्ती वाले सो रहे थे। खुशकिस्मती से एक बूढ़े बाबा बाहर बैठे हुक्का गिड़गिड़ा रहे थे। सौबान का माथा ठनका। इसने फौरन अपने सब दोस्तों को झाड़ियों में छुपा दिया और उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और उनसे कहा कि चाहे जो भी हो जाए तुम लोग बाहर मत आना। हो सकता है ये उनका कारिंदा हो और इसे 4 लोगों के गायब हो जाने की इत्तिला भी पहले से ही मिल चुकी हो। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। सौबान पुरसुकून अंदाज में चलता हुआ इस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। इसने इसे सलाम किया। बूढ़े आदमी ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, बरखुरदार खैरियत तो है? रात के इस वक्त बियाबान में क्यों भटक रहे हो? सौबान ने पुरसुकून लहजे में कहा, बाबा जी वो मैं इस तरफ काम से निकला था, लेकिन देखिए किस्मत, मेरी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। घर से काफी दूर आ चुका था इसलिए पीछे की जानिब भी नहीं जा सकता था। बस फिर आगे की जानिब चल दिया और खुशकिस्मती से इस बस्ती में आ पहुंचा और आपसे मुलाकात हो गई। बूढ़े आदमी ने इसके कपड़ों की तरफ नजर दौड़ाई। मियां वो तो ठीक है, पर ये कपड़े क्यों गीले कर रखे हैं रात के इस वक्त? सौबान का माथा ठनका। इसे तो याद ही ना रहा कि जुबैर और अरबाज को नहलाते वक्त उसके कपड़े मुकम्मल तौर पर गीले हो गए थे। इसने इसका शक दूर करने के लिए एक कहानी घाड़ डाली। वो दरअसल जनाब मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। कब से गाड़ी को ठीक करते करते पसीने से शराबूर हो गया था। अब गाड़ी ने तो बनने का नाम नहीं लिया तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा और गाड़ी को मजीद पानी पिलाने की बजाय मैंने वो पानी खुद पर उंडेल लिया। इस तरह मेरा पसीना भी पानी के साथ बह गया और गाड़ी पर चढ़ा गुस्सा भी ठंडा हो गया। बूढ़े आदमी ने कहकहा लगाया, अच्छा अच्छा ये बात है, फिर तो बहुत अच्छा किया बरखुरदार। सौबान ने सरसरी अंदाज में पूछा, मोहतरम आप यहाँ रहते हैं?